A very good morning to all my dear students. I hope all of you are doing well. So let's start our class. Yesterday we were discussing the controlling process. The controlling process, and we have discussed the initial 5 points of this process. We have discussed that how controlling starts with setting up of the objective, and then how the manager measures the actual performance in the organization. Then he compares the actual performance with planned performance, and then he analyzes the deviations. Right. While analyzing the deviations, there were two approaches. We have discussed management by exception, wherein manager looks after each and every activity, but only at the emergency situations, only in the exceptional situations. And we have discussed critical point control, where the manager will look after only in the problems of key areas. Manager will distribute all the functions into two parts. Some will be a part of key areas, and only the problems in key areas will be looked after by managers. Rest all problems will be solved by workers themselves. Now we have to start this fifth point, taking corrective measures. Basically, this point is the main part of controlling function. We are just comparing our actual performance and planned performance so that we can take the corrective measure. In case of any deviation, we have to take the corrective measure to remove or reduce the deviation. I have used two words, remove और reduce. काफी बार डेविएशन को रिमूव करना पॉसिबल नहीं होता, तो हम उसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, कम करने की कोशिश करते हैं कि कैसे उस डेविएशन को, उस प्रॉब्लम को मिनिमाइज किया जा सके. राइट. अब इसमें हमने ये पॉइंट्स कल डिस्कस कर लिए थे that if the deviations are minor, we will leave the situation as it is. If our plans are not proper, then we will reframe our plans. And if our performance is not proper due to our efforts, then we will try to improve our efforts. Now have a look. In this paragraph, it is written that generally corrective measures are taken by the managers according to the situation. If the deficiency is due to ineffectiveness of workers, then workers will be sent for training. If it is because of fault of machinery, then we will get our machinery repaired. If it is because of laziness of employees, then manager will motivate the employees. If the targets are not achievable, then manager will reframe the target and make it smart. Now, two 1-mark questions are hidden in this point. Have a look. You have to tick it from here. From sometimes, two important 1-mark questions are hidden. कुछ बच्चे इसको इग्नोर ही कर देते हैं, देखते ही नहीं है पॉइंट को इतना बड़ा कि ठीक है करेक्टिव मेजर हमें पता चल गया, पढ़ने की क्या जरूरत है, तो वो यहाँ पे स्कोर नहीं कर पाएंगे. देखिए क्या लिखा हुआ है. Sometimes the managers have to set the standards or targets again if they are not realistic and achievable. This revision of standards is called downward revision because the standards are reduced to make them realistic or achievable. मैंने अपना टारगेट सेट कर लिया कि मेरी क्लास के तो हर बच्चे के 100 आउट ऑफ 100 आ जाए, तो भैया ये टारगेट रियलिस्टिक नहीं है, ये टारगेट अचीवेबल नहीं है. ऐसे में मुझे अपना टारगेट थोड़ा सा डाउनवर्ड रिवीजन में लेना पड़ेगा, मुझे अपना टारगेट कम करना पड़ेगा. मैं ये टारगेट कर सकती हूँ कि मेरी क्लास का हर स्टूडेंट 90 प्लस स्कोर करे, ठीक है, मेरी क्लास का हर स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन लाए. तो जब मैं बहुत हाई स्टैंडर्ड सेट कर चुकी होती हूँ और वो अनअचीवेबल हो जाता है और उसको मैं लो करने की कोशिश करती हूँ, उसको वापस से नीचे लेके आती हूँ, इस रिवीजन को कहते हैं डाउनवर्ड रिवीजन ऑफ द प्लान. अगर आप खेल रहे हो और आपने टारगेट सेट किया कि आपको 1000 पॉइंट स्कोर करने हैं, एक्चुअली आप 400 ही स्कोर कर पा रहे हो, तो आपको पता चलेगा आपने अपने लिए टारगेट बहुत हाई सेट कर दिया, तो एक बार के लिए आप अपना टारगेट रिड्यूस करके 500 कर लोगे. इस रिडक्शन को कहते हैं डाउनवर्ड रिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड. और अगर आपने टारगेट सेट किया 1000 और आप अचीव कर पा रहे हो 1400 स्कोर, इसका मतलब है योर स्टैंडर्ड इज लोअर देन योर कैपेसिटी. दिस टाइम यू हैव टू इंक्रीज योर स्टैंडर्ड. इसको आपको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, और जब आप इसको थोड़ा सा हाई लेके आएंगे तो इसको कहेंगे अपवर्ड रिवीजन. क्या कहेंगे? अपवर्ड रिवीजन. ये देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे. Sometimes the performance is higher than the set standard
In that case, upward revision of plan is done and plans are set at high rate so that they can match with actual performance. काफी बार हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस हाई होती है तो हमें अपनी प्लान का अपवर्ड रिवीजन भी करना पड़ता है। तो मैनेजर कैसे ये डिसीजन लेगा कि कौन सा रिवीजन करना है? डेविएशन का रूट कॉज ढूंढ के, ठीक है, रूट कॉज ढूंढेगा और उसके बाद में उस कॉज को रिमूव करने के लिए एफर्ट्स करेगा। एनीवन, एनी डाउट्स? All right then. The last point, feedback in controlling. Controlling process never end only by taking the corrective measure. After taking the corrective measure, we need to prepare a feedback report also. For example, हम कल बात कर रहे थे कि suppose मैंने मेरे लिए टारगेट सेट किया कि मुझे आपको 1 मंथ में मिनिमम 2 या 3 चैप्टर्स करवाने। एंड में मैंने अपने टारगेट का इवैल्यूएशन किया, मैंने देखा टारगेट क्यों नहीं अचीव हो रहा। अब मैंने जो देखा, मैंने जो समझा, उसका एक फीडबैक रिपोर्ट मुझे प्रिंसिपल मैम को सबमिट करना पड़ेगा। हमें करना पड़ता है, जैसे अभी हम कंट्रोलिंग फंक्शन में लगे हुए हैं, हम क्रॉस चेक कर रहे हैं whether the students are doing the work or not, and we are also providing a feedback report to our managers that whether the students are doing the work or not, and if they are not doing, then what are the steps that we are taking, right? What are the corrective measures that we have planned for the students, ये भी हमें बताना पड़ता है। So it means controlling never ends by taking the corrective measure. Even after taking the corrective measure, you have to note down your feedback so that future managers can use your feedback report as the basis for their planning. वो क्या करेंगे, उस feedback report के according ही plan करेंगे। जैसे पिछले साल कोविड में जो सिचुएशंस हुई, हमने फीडबैक रिपोर्ट रेडी करके रखी कि स्टूडेंट्स ऐसे ऐसे रिएक्ट करते हैं, तो इस साल हमने स्टूडेंट्स के लिए वैसा ही प्लान कर लिया। पिछले साल गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि भाई लास्ट तक आते आते सिचुएशन वर्स्ट हो गई और बोर्ड एग्जाम नहीं हो पाए, तो इस साल गवर्नमेंट ने पहले से ही प्लान कर लिया कि वो क्या करेगी, 2 बार एग्जाम होगी। तो देखिए ये क्या कह रहे हैं, आपको ये सेंटेंस लिखना जरूरी है और डिफेंड और रिफ्यूट में भी आ सकता है। कंट्रोलिंग फंक्शन एंड बाय टेकिंग अ करेक्टिव एक्शन, यू हैव टू डिफेंड और रिफ्यूट, तो आप रिफ्यूट कर देंगे, नो इट नेवर एंड्स बाय टेकिंग अ करेक्टिव मेजर। Even after suggesting a corrective measure, we need to prepare a feedback report. अब feedback की definition लिख के दीजिए line number 3 में, you have to highlight this. Feedback refers to list of reasons for deviations of plans or for inefficiency in overall working of organization. Along with the reasons, the corrective measures are also specified in the feedback report. क्या कह रहे हैं ये? Feedback में हमने पहले तो reason लिखे कि क्यों deviation आ रही है, फिर उसके बाद में करेक्टिव मेजर्स भी लिख दिए कि हमने इस डेविएशन को करेक्ट करने के लिए क्या क्या किया। ये जो फीडबैक है ये एक बेस बन जाएगा अगले साल की प्लानिंग के लिए। जब अगले साल हम प्लान करेंगे तो हम इसी फीडबैक रिपोर्ट को यूज करेंगे। तो आपको फिलअप में पूछ सकते हैं, which report act as a basis for establishing standards for upcoming year? आपको बताना है the feedback report of controlling process act as a base to establish standard. I hope this is clear to all of you. I hope the controlling process is clear to all of you. It is quite simple. What we do, we just set up our target, we just measure the performance, we compare the actual performance with the planned one, we analyze the deviations by either using MBE or critical point control, and then we take corrective measures. At last, we prepare a feedback report, and then after we just restart our planning process. Now the meaning of deviation is given. Deviation is quite simple. It is the difference between actual and planned performance. If I wanted to score 1000 points, but I actually scored 800, then 200 will be my deviation, the difference. This deviation can be positive as well as negative. If my actual work is more than my targeted work, then my deviation is positive. In case of positive deviation, manager need अपवर्ड रिवीजन ऑफ द प्लान। यहां लिख लीजिए बेटा आप लोग अपनी बुक में, अपवर्ड रिवीजन इज रिक्वायर्ड। कैसा रिवीजन चाहिए? अपवर्ड रिवीजन। एंड इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन, समटाइम्स अ डाउनवर्ड रिवीजन इज रिक्वायर्ड एंड समटाइम्स इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस इज रिक्वायर्ड। ऐसा नहीं होता कि हमेशा नेगेटिव डेविएशन में डाउनवर्ड रिवीजन ही करते हैं, नो। If the deviation is because of your poor performance, तो हम अपना प्लान रिड्यूस नहीं करेंगे,
हम अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करेंगे। जैसे आपने अपने लिए 90% का टारगेट सेट किया बट आप 90 नहीं ला पा रहे, बट आपको पता है आपकी कैपेसिटी 90 है, आपका स्टैंडर्ड सही है, तो ऐसे में आप अपने प्लान को रिड्यूस नहीं करोगे, आप अपनी डेविएशन को कम करने के लिए अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो मैंने आपको पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन का मीनिंग बता दिया है। इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन देयर विल बी अपवर्ड रिवीजन, in case of negative deviation maybe there will be an improvement in performance, and अगर strategically कोई problem आ रही है तो हम अपने plan को reduce कर देंगे। So we have completed the 8th chapter of your book, that is controlling. This is the simplest chapter of your complete book. सबसे easy और सबसे छोटा सा chapter यही है। क्या क्या पढ़ा chapter में हमने? सबसे पहले meaning of controlling, then only 4 points of nature of controlling, and then after importance of controlling, then the relation between planning and controlling, and then at last the controlling process. ये हमने पढ़ा। चलिए कुछ केसेस गिवन है, पढ़ लेते हैं इन एमसीक्यूज को। नंबर 1, Rakesh is a senior manager in a software consultancy firm. He regularly prepares performance reports of his subordinates as a part of appraisal. The step of controlling process is, बताइए कौन सी है ये, कौन सा स्टेप वो परफॉर्म कर रहा है? He prepares a performance report of his subordinate. कितना कितना काम किया उसके वर्कर ने, वो उसकी रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहा है। Anyone who can give the answer? अगर मैं आपने कितना कितना काम किया इसको नोट डाउन कर रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं आपकी परफॉर्मेंस को मेजर कर रही हूँ। पॉइंट नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। आप देख लीजिए क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा सिंपल नहीं है, ये मेजर कर रहा है वो परफॉर्मेंस को, आपको ढूंढना पड़ेगा। काफी बच्चे इस पे फीडबैक रिपोर्ट लिख देते हैं। अगर ऑप्शन में फीडबैक होगा ना तो मैक्सिमम बच्चे उसी को टिक कर देंगे। क्यों? क्योंकि रिपोर्ट वर्ड देख लिया, बस रिपोर्ट तो हमने फीडबैक नहीं पढ़ा है, तो ऐसा नहीं होता है, अच्छे से समझो। फिर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटररिलेटेड टू ईच अदर, राइट? अपोजिट नहीं है, इंटररिलेटेड है, जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट, you are a manager in car manufacturing company. It is reported that postal expenses have increased by 10% and cost of raw material is increased by 2%. Which of the two deviation is more critical to you? आपके हिसाब से दोनों में से कौन सा पॉइंट ज्यादा क्रिटिकल है? बताइए मुझे कौन सा क्रिटिकल है आपके अकॉर्डिंग? Which point is more critical to you? किसी के लिए कोई भी पॉइंट क्रिटिकल नहीं है। लक्षिता बेटा आप किस पे ज्यादा ध्यान देंगे? पोस्टल एक्सपेंसेस पे या फिर प्रोडक्शन कॉस्ट पे? लक्षिता नो रिस्पॉन्स। ओके, यू आर नॉट हैविंग अनम्यूटिंग राइट्स। चलिए देखिए, हम ध्यान देंगे रॉ मटेरियल की कॉस्ट पे, और ये रिलेटेड है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल से। ये पूछ रहे हैं कौन सा कंसेप्ट कंट्रोलिंग का है, तो कंट्रोलिंग का जो कंसेप्ट है वो है क्रिटिकल पॉइंट। हैव अ लुक, आपकी बुक में जो हॉट्स वाले क्वेश्चंस गिवन है उनमें कुछ क्वेश्चंस डिफरेंट है जिनको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 इज क्वाइट सिंपल, आपको ये 3 मार्क्स में मिलेगा सीबीएसई एग्जामिनेशन में। How controlling helps in judging accuracy of standard and how it ensure order and discipline in the organization. आपको 2 पॉइंट इंपॉर्टेंस के क्वेश्चन में लिख के दिए हुए हैं, जिन दोनों को आपको एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, फिर सेकंड लिखिए, दोनों को 1.5 के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू मार्क अ स्टार ओवर हियर। If anything goes wrong with the performance of key activities, the entire organization suffers. Therefore, the organization should focus on them. Explain the statement with a suitable example. आपको कह रहे हैं की एरिया में अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन सफर करेगी। की एरिया इज द की वर्ड ऑफ क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। ये क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल से रिलेटेड है। यू कैन गिव एग्जांपल कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में रॉ मटेरियल की कॉस्ट या प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ जाती है तो कैसे उससे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन सफर करती है। क्वेश्चन समझ लीजिए, आंसर तो आप बुक से खुद ही कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश झा विशेस टू फिक्स स्टैंडर्ड प्रोडक्शन फॉर अ वर्कर along with standard time to complete the job.
अंडर विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स आर फिक्स्ड। अब जब ये बोर्ड में आता है तो बच्चे प्लानिंग लिख देते हैं। प्लानिंग का कीवर्ड होगा ऑब्जेक्टिव और कंट्रोलिंग का कीवर्ड होगा स्टैंडर्ड। तो अगर आपको पूछ ले स्टैंडर्ड किस में फिक्स किए जाएंगे तो आपका आंसर रहेगा कंट्रोलिंग। यहाँ तो हमने कंट्रोलिंग चैप्टर में ही पढ़ा है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर एमसीक्यू में आ जाता है कि स्टैंडर्ड किस में फिक्स किए जाते हैं, योर आंसर विल बी कंट्रोलिंग। और अगर पूछे ऑब्जेक्टिव्स किस में सेट किए जाते हैं तो योर आंसर विल बी प्लानिंग। ठीक है, ध्यान रखना है इसको बहुत अच्छे से। नेक्स्ट, Jindal Limited could not achieve the target of producing 15,000 cars per annum. It could produce only 14,125 cars, यानी कि यहाँ पे इन्होंने 875 cars कम बनाई है। While analyzing the reasons for deviation, it was found that workers were not efficient. बढ़िया क्वेश्चन है ये। Training programs were organized and next year company was able to produce 15,000 units. Production manager is of the opinion that with this management ends at controlling. Do you agree? Give reasons to support your answer. Explain any 4 points of importance of controlling. अब ये तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन ही है, कुछ भी इनडायरेक्ट नहीं है, लेकिन इसी क्वेश्चन को मैं आपके लिए घुमा देती हूँ और घुमा के भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहले तो ये बोल रहे हैं डू यू एग्री कि मैनेजर कह रहा है कंट्रोलिंग खत्म हो गया है। बताइए यस और नो, डू यू एग्री एनीवन? क्या कंट्रोलिंग प्रोसेस यही खत्म हो जाता है? क्या मैनेजमेंट यही खत्म हो जाता है? मनीष बताइए बेटा। मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट करना, मैम वॉइस थोड़ी लैग हो रही। बेटा आई एम आस्किंग कि क्या कंट्रोलिंग प्रोसेस यही फिनिश हो जाएगा क्या, या मैनेजमेंट यही फिनिश हो जाएगा? इन्होंने कंट्रोलिंग कर लिया, इन्होंने डेविएशंस को करेक्ट कर दिया, क्या इनका मैनेजमेंट यही फिनिश हो जाएगा क्या? नहीं मैम, इसके बाद एनालाइजिंग और उसके बाद उसको मैम वापस से कुछ अगर प्रॉब्लम है तो रीइंटरप्रेट करना, अभी तो मैम पूरा नहीं होगा। बिल्कुल अभी खत्म नहीं हो रहा है कंट्रोलिंग, अभी तो डेविएशंस को, अभी कंट्रोलिंग तो खत्म नहीं हो रहा क्योंकि फीडबैक रिपोर्ट रेडी की जाएगी। और क्वेश्चन पूछ रहा है मैनेजमेंट एंड हो गया, तो बिल्कुल नहीं, मैनेजमेंट तो अब दोबारा प्लानिंग पे आ जाएगा, वो अपकमिंग ईयर के लिए प्लान करना स्टार्ट कर देगा। कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस कोई भी 4 पॉइंट बता सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन में आपको पूछ लूं which step of controlling process is highlighted in the above case, कौन सा स्टेप हाईलाइटेड है? आपको अलोंग विद लाइन बताना हो तो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है टेकिंग करेक्टिव मेजर। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए अपने वर्कर के लिए, और जब वो वर्कर के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इट मींस दे आर टेकिंग द करेक्टिव मेजर। अगर स्टेप पूछ ले तो आप लिखेंगे टेकिंग करेक्टिव मेजर। अगर स्टेप्स पूछ ले, स्टेप की जगह स्टेप्स पूछ ले तो मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, सेटिंग अप ऑफ टारगेट भी है, फिर उन्होंने परफॉर्मेंस को मेजर भी किया, कंपेयर भी किया और डेविएशन को एनालाइज करके करेक्टिव मेजर भी ले लिया। स्टेप्स पूछ लेंगे तो आपके फर्स्ट से फिफ्थ तक सारे स्टेप्स हाईलाइट हो गए, राइट। और अगर सिर्फ एक स्टेप पूछेंगे तो करेक्ट आंसर रहेगा टेकिंग करेक्टिव मेजर, क्योंकि लास्ट वाले स्टेप की बात होती है कि एट लास्ट उन्होंने कौन सा स्टेप लिया है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल के बारे में है। जब भी आता है ना तो पोस्टल एक्सपेंसेस को ही लेके आते हैं। आपको ध्यान रखना है पोस्टल एक्सपेंसेस हमेशा सेकेंडरी एक्सपेंस है जिसपे हम फोकस नहीं करेंगे। हम फोकस करेंगे किस पे? अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट पे, लेबर की कॉस्ट पे, रॉ मटेरियल की कॉस्ट पे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो अगर हम फोकस करेंगे अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट पे या लेबर कॉस्ट पे तो हम क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल को इनिशिएट कर रहे होंगे। बस इसके बाद ऐसी ही कुछ केस स्टडीज गिवन है, मैं आपको बता देती हूँ कौन सी अभी नहीं करनी। केस स्टडी नंबर 6 अभी मत करना, आपको समझ में नहीं आएगी। चैप्टर नंबर 6 और 7 का भी पार्ट है इसमें। केस स्टडी नंबर 6 आपको नहीं करनी है। उसके बाद में बाकी की सारी केस स्टडीज आप आराम से, केस स्टडी नंबर 8 नहीं करनी है, नंबर 8 नहीं करनी है। बस नंबर 8 के बाद में सारे केसेस, बहुत थोड़े से ही केस स्टडीज गिवन है।
कंट्रोलिंग वाले चैप्टर में सबसे कम क्वेश्चंस और सबसे कम कंटेंट है। ये चैप्टर ऐसा है जो आपको आराम से बोर्ड में 4 to 5 मार्क्स स्कोर करवाएगा, तो इसको एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए अपने लिए। और हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में आगे के टॉपिक्स के साथ। उससे पहले एनीवन, एनी डाउट्स, किसी को कुछ भी पूछना है, कोई कंफ्यूजन है? मैम कल नया चैप्टर शुरू करेंगे क्या? कल नया चैप्टर, हाँ जी बिल्कुल, कल नया चैप्टर शुरू करेंगे और सैटरडे को मिलेंगे वीडियो के साथ, ठीक है। कल हम स्टार्ट कर देंगे चैप्टर नंबर 5, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। बस कंट्रोलिंग पूरा कर लिया, प्लानिंग कंट्रोलिंग आप अपने लेवल पे पढ़िए। डाउट्स होंगे वो संडे को एक्सप्लेन कर दूंगी, मंडे को कर दूंगी। और कल हम स्टार्ट कर देंगे चैप्टर नंबर 5 ऑफ योर बुक, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। ओके एवरीवन, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ।